Hello children, how are you all? I hope you all are fit and fine, watching the videos and completing your work. So children, watch the videos regularly and complete your work from the video. So children, in the previous video, we were doing chapter 6, that is word pad. Children, we had completed the chapter and we were doing book exercise. In book exercise also we were doing question number, we had done question number A and B and we had started question number C. So children, in question number C we have answer the following question. Question number C, we have answer the following question. So children, under this we have 4 questions. We have 4 questions which we will write in our book itself. So children, let us start. Here we have question number 1. Define word pad. PAD, pad. So children, as we know, word pad is a program. As we know, WordPad is a program which is used to type text in the computer. If you want to write something in a computer, it is known as typing. So if you want to type something in a computer, if you want to type text in a computer, you need a program, and WordPad is such a program which is used for typing text. So you will write WordPad is a program. WordPad is a program which is used to type type text, which is used to type text. WordPad is a program which is used to type text. So children, define WordPad, yani you have to write about WordPad. So exactly what WordPad is, that you have to write here. So we have written here, WordPad is a program which is used to type text. तो WordPad जो है एक प्रोग्राम है जिसको यूज करके हम कुछ भी कंप्यूटर में लिख सकते हैं. लिखने को हम टाइपिंग कहते हैं. So this you will write in your book. Then we have second question, children. What is insertion point? Question number 2 is what is insertion point? POINT point. So children, as you know, insertion यानी insert का मतलब होता है डालना. To put something या मतलब कुछ भी किसी चीज़ के अंदर डालना. तो यहाँ पे अगर हमें टेक्स्ट लिखना है तो we need a अगर हमें कंप्यूटर में टेक्स्ट डालना है तो उसे हम इंसर्ट करना कह सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे कोई भी चीज़ जब हम किसी भी प्रोग्राम के थ्रू इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए वी हैव अ कर्सर. हम यू मस्ट हैव सीन देयर इज अ कर्सर, यानी स्मॉल एरो, स्मॉल लाइन होता है विच कीप्स ऑन ब्लिंकिंग ऑन द स्क्रीन. तो व्हेन you open WordPad, children, you will see small arrow, vertical arrow, which keeps on blinking on the screen, and this flashing small light is called insertion point. तो वो point, वो जगह जो भी हम टाइप करते हैं, as we know कि WordPad is a program in which we type something. ठीक है. उसमें हम कुछ भी लिखते हैं. ये लिखना क्या हुआ? इंसर्ट करना हुआ. हम इंसर्ट कर रहे हैं यानी कि कंप्यूटर में डाल रहे हैं. तो इंसर्ट जिस जगह से इंसर्ट होना शुरू होता है उस जगह को हम इंसर्शन पॉइंट कहते हैं. तो वैसे ही जब हम यहाँ पे एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट, कभी कभी वर्टिकल होता है, कभी कभी हॉरिजॉन्टल होता है. तो यहाँ पे जो हमारा वर्डपैड है उसमें जो फ्लैशिंग लाइन हमको दिखाई दे रही है, दैट लाइन इज द पॉइंट वेयर वॉट एवर यू टाइप फ्रॉम द कीबोर्ड गेट इंसर्टेड. वहाँ से ही वो लिखना शुरू होता है, इसलिए हम उसे इंसर्शन पॉइंट कहते हैं. द प्लेस फ्रॉम वेयर यू राइट समथिंग इज कॉल्ड इंसर्शन पॉइंट. तो यहाँ पे हमें लिखना है व्हाट इज इंसर्शन पॉइंट. तो आंसर में यू विल राइट it is a flashing line on the screen where you type the text. So answer is, या तो आप लिखोगे insertion point is a flashing line on the screen where you type the text. So
इट इज, या फिर यू कैन राइट इट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर यू राइट द टेक्स्ट। इंसर्शन पॉइंट इस तरह से भी आप लिख सकते हो, इंसर्शन पॉइंट, POINT पॉइंट is a flashing line on the screen का मतलब है आपका मॉनिटर स्क्रीन, SCREEN स्क्रीन, from where you type something on the screen, या फिर where you insertion point on the screen, where WHERE इंसर्शन पॉइंट इज अ होगा, यहाँ पे वी विल राइट इज अ फ्लैशिंग लाइन ऑन द स्क्रीन। एक मिनट, गलत हो गया, वी विल राइट वंस अगेन, वी विल राइट फ्रॉम हियर इंसर्शन पॉइंट इज अ IS इज अ फ्लैशिंग लाइन LINE लाइन ऑन द screen where you type 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 the text, TEXT text, where you type the text. Now insertion point is a flashing line on the screen where you type the text. So children, it is a flashing light जो फ्लैश करता रहता है, जो ब्लिंक करता रहता है, और whatever you insert या type from the keyboard get written from that point. तो वो पॉइंट जहाँ से हम जो भी टाइप करते हैं कीबोर्ड के हेल्प से वो लिखना शुरू होता है, उस पॉइंट को हम इंसर्शन पॉइंट कहते हैं. So I hope you are clear with it. Here we have understood question number 1, that is define WordPad. We have already discussed what is WordPad because whatever we have learned in this chapter, I hope you all have understood. So the chapter was basically on WordPad. WordPad is a program. Program का मतलब होता है सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड फॉर डूइंग अ स्पेसिफिक टास्क. तो जो WordPad है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स अस इन डूइंग अ स्पेसिफिक टास्क. और एक जो प्रोग्राम होता है या फिर एक जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो सिर्फ एक तरह का काम करता है. तो यहाँ पे जो हमारा WordPad है ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम एक तरह का काम कर सकते हैं, दैट इज टाइपिंग. तो इट इज जस्ट लाइक अ नोटपैड एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ नोटपैड एंड पेंट. वी कैन से इट इज अ मिक्सचर ऑफ नोटपैड एंड पेंट. तो नोटपैड में हम लिख सकते थे और पेंट से हम कुछ ड्रॉ कर सकते थे या फिर हम फॉर्मेटिंग कर सकते थे. लाइक हम कलर अपने फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें, और उसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं. हम उसे डेकोरेट कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल में लिख सकते हैं. सो ये सारी चीज़ें हम पेंट में भी कर सकते थे. तो ये पेंट और हमारे नोटपैड का कॉम्बिनेशन है, दोनों के फीचर्स को मिला करके वर्डपैड बनता है. तो नोटपैड हमने जो लास्ट ईयर पढ़ा था उसमें हम सिर्फ लिख सकते थे, लेकिन वर्डपैड में हम लिख भी सकते हैं. वी कैन मेक आवर राइटिंग ब्यूटीफुल एज वेल एज अट्रैक्टिव. हम अपने राइटिंग को ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लिख सकते हैं. सो व्हाई डू वी नीड टू मेक आवर राइटिंग अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल? क्योंकि कभी कभी हम कार्ड वगैरह प्रिंट करते हैं या फिर हम कोई भी बैनर बनाते हैं तो उसमें हम अलग अलग स्टाइल में लिखते हैं ताकि पीपल गेट अट्रैक्टेड टू इट, फैसिनेट हो उससे लोग. तो हम अब पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट भी अलग अलग फॉन्ट्स में लिखते हैं, अलग अलग स्टाइल में लिखते हैं. तो इस वजह से हमें इन सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है. तो दिस वर्डपैड इज अ सॉफ्टवेयर विच इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर टाइपिंग द टेक्स्ट एंड मेक द टेक्स्ट ब्यूटीफुल एज वेल एज अट्रैक्टिव. तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे कि बेसिकली ये बना होता है टाइपिंग के लिए, और उसके बाद बाकी के फीचर्स तो एडिशनल है तो वो हम कर सकते हैं. तो वर्डपैड इज अ प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू टाइप द टेक्स्ट या टाइप टेक्स्ट. फिर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज इंसर्शन पॉइंट? इंसर्ट का मतलब होता है डालना यानी घुसाना. अब यहाँ पे इंसर्शन, जहाँ वो पॉइंट जहाँ से हम अपने टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं उसको हम इंसर्शन पॉइंट कहते हैं. सो विद दिस स्टूडेंट, इंसर्शन पॉइंट इज अ फ्लैशिंग लाइन on the screen where you type the text. With this we have completed question number 1 and 2. Please write it in your notebook. Please write it in your book, क्योंकि बुक में भी वर्कशीट के फॉर्म में दिया है, आप कंप्यूटर का वर्क बुक में करते हो. So let us do the next one. Take a screenshot. Okay, so we'll do
क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3। 2 भी आपने कर लिया होगा, 2 और 3 हम मिटा देते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3 children we have how can we enter the text. So children, question number 3 is how, H-O-W, how can we enter the text, T-E-X-T, text। हम टेक्स्ट को कैसे एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आंसर है, आंसर में हमारे पास है कि हाउ कैन वी एंटर द टेक्स्ट, हम एंटर कैसे करते हैं। सो चिल्ड्रन, व्हाइल रीडिंग द चैप्टर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट, हाउ टू टाइप टेक्स्ट और एंटर टेक्स्ट, फिर हाउ टू चेंज द फॉर्मेट और हाउ टू चेंज द फॉन्ट साइज, सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। और सेव करने के बाद वापस ओपन करना भी करा हुआ है। लेकिन वो सारी चीज़ें क्या ना, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ कैन वी एंटर द टेक्स्ट, हम टेक्स्ट को कैसे एंटर करेंगे। टेक्स्ट को एंटर करने के लिए वी नीड अ कीबोर्ड, सो वी कैन एंटर द टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। सो यहाँ पे वी विल राइट, क्योंकि हम टेक्स्ट को एंटर कीबोर्ड से प्रेस करके ही करते हैं। जो भी टेक्स्ट हमको लिखना है हम कीबोर्ड में जो भी कीज अवेलेबल है उसको प्रेस करके ही करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी कैन एंटर द टेक्स्ट, W-E-V-C-A-N, can enter the, T-H-E, the, T-E-X-T, text, we can enter the text with the help of keyboard, K-E-Y-B-O-A-R-D, board. We can enter the text with the help of keyboard. So children, how can we enter a text? We can enter a text with the help of keyboard. हमें जो भी एंटर करना होता है, यानी कि हमें जो भी टेक्स्ट टाइप करना होता है कंप्यूटर में, उसे हम एंटर करना कह सकते हैं। तो वो हम कीबोर्ड से उस पर्टिकुलर बटन को या उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को या उस पर्टिकुलर लेटर को प्रेस करके हम एंटर करते हैं। तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। सो यहाँ पे को टेक्स्ट एंटर करने का और कोई उपाय नहीं है और कोई वे नहीं है, इट इज ओनली द कीबोर्ड थ्रू विच वी कैन एंटर द टेक्स्ट। So question is how can we enter the text? We can enter the text with the help of keyboard. This is question number 3. I hope you have understood. Now question number 4. In question number 4 we have where is the title bar located and what does it show? Where is the, ये थोड़ा बड़ा आंसर है, तो let us write third one and then I'll rub the third one and then we'll write fourth one. तो ये आपका हो गया है। If you have done, let us rub this. अब मैं इसको मिटा रही हूँ। इसको मिटाने के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, where is the title bar, is the title, T-I-T-L-E, title, B-A-R, bar, located. Where is the title bar located? Where is the title bar located? And A-N-D, and what, W-H-A-T, what does it show? D-O-E-S, does it, S-H-O-W, show. Where is the title bar located and what does it show? तो सबसे पहले यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड ऑफ अ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन की ज़रूरत क्या है, क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है। तो सबसे पहले द क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इन फर्स्ट पार्ट इट इज आस्किंग वेयर इज द टाइटल बार लोकेटेड। सो चिल्ड्रन, व्हाट इज द आंसर? एज वी ऑल नो, टाइटल बार इज अ बार विच इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडो। ये जो टाइटल बार होता है, हर विंडो में ये टाइटल बार होता है और ये सबसे ऊपर होता है। तो यहाँ वर्ड पैड में भी इट इज लोकेटेड एट द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द विंडो। तो ये सबसे ऊपर वाले पार्ट में लोकेटेड होता है। और व्हाट डज इट शो, ये क्या दिखाता है? इट शोज द
नेम ऑफ द डिस्प्लेड डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट डिस्प्ले किया होता है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट हमने खोला होता है और हमारे सामने खुला होता है, उसका वो नाम दिखाता है। तो इट शोज द नेम ऑफ द डिस्प्लेड डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट हमारे सामने डिस्प्ले किया हुआ है या खुला हुआ है, उसका ये नाम दिखाता है। सो चिल्ड्रन, लेट अस राइट। सो इन दिस आंसर वी विल राइट, फर्स्ट वी विल राइट the answer of first part, where is the title bar located। तो हम यहाँ पे लिखेंगे title bar is located at the TITLE, title bar is located at the top most part of the window, top most part of the window. It shows window, comma, it shows the name, N-A-M-E, name of the document displayed, या it shows the name of the displayed document भी लिख सकते हैं, या name of the displayed document, we have to write D-O-C-U document, document. So children, this is your question number 4. In question number 4 children, the question asks, where is the title bar located? टाइटल बार कहाँ पे लोकेट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द विंडो। विंडो का टॉप मोस्ट पार्ट सबसे ऊपर का पार्ट जो है, जैसे इस बोर्ड का सबसे ऊपर का पार्ट ये है, इसको हम टॉप मोस्ट पार्ट कहेंगे, जहाँ पे हमने डेट लिखा है, वर्ड पैड लिखा है एंड कंप्यूटर क्लास 3 लिखा हुआ है। तो दिस इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। सिमिलरली द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द विंडो इज, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है विंडो का, उसे हम टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द विंडो कहेंगे। तो सबसे ऊपर वाली जो स्ट्रिप होती है, बार होता है, लाइन होती है, उसमें आपको टाइटल दिखाई देगा विंडो का। और इसके अलावा वी कैन ऑल्सो हैव सम मोर थिंग्स, इसमें और भी चीज़ें होती है, लेकिन मेनली क्योंकि टाइटल बार है तो इसमें टाइटल ही होता है, तो हम यहाँ पे टाइटल ही बताएंगे। तो टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप most part of the window. It shows the name of the display document। जो भी डॉक्यूमेंट आपके सामने डिस्प्ले होता है, क्या होता है, मतलब कि जो भी आपने खोला हुआ है, जो भी खुला हुआ है, उसका नाम वो शो करता है। दिस इज आंसर नंबर 4 एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। प्लीज राइट डाउन। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव टेकन स्क्रीनशॉट और रिटन हैव डन द आंसर। तो चिल्ड्रन, ये था हमारा क्वेश्चन आंसर। Question number C, answer the following question. I hope you all have done. Now we'll do the next one. Next one में हमारे पास है lab activity. So lab activity हम lab में जाके करते हैं, but let us discuss here. When we get time to go to lab, we'll go and do it in the lab. अभी हम इसको पहले समझ लेते हैं। So सबसे पहला क्वेश्चन है open word pad. I have told you, I have explained you, and I have shown you also how to open word pad. मैंने आपको करके दिखाया है वर्ड पैड कैसे खुलता है। आई होप यू ऑल नो हाउ टू ओपन वर्ड पैड। देन क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, दिस ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू, दिस ऑल्सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन द वर्ड पैड। देन टाइप द फॉलोइंग स्टोरी। सो अब आपको खोलना आ गया, डॉक्यूमेंट बनाना आ गया, अब यू कैन ईजिली टाइप द शॉर्ट स्टोरी विच इज रिटन हियर। तो ये जो छोटी सी स्टोरी यहाँ पे लिखी है, आप इसको लिख करके यानी टाइप करोगे कंप्यूटर में, और टाइप करने के बाद नाउ परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। उसके बाद यू विल परफॉर्म द टास्क विच इज गिवन जस्ट बिलो द स्टोरी। सो हियर चिल्ड्रन, नाउ first one is save the document with your name. So firstly you will start WordPad, then you will write the story in the WordPad, and after writing the story you will save this document. आप इस document को save करोगे। तो you all know how to save a document. You will go to file and from there you can save the document, or you can go to the
आपके क्विक एक्सेस बार में भी आप वहाँ से भी सेव कर सकते हो फाइल को। अदर देन दैट यू कैन यूज शॉर्टकट की भी मैंने बताया है कि Ctrl+S प्रेस करके भी हम उस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। और जब हम Ctrl+S करेंगे तो देयर विल बी अ स्मॉल डायलॉग बॉक्स विच विल आस्क फॉर द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। सो देयर यू विल टाइप द नेम एंड उसके नीचे सेव दिया होगा, आप सेव पे क्लिक करोगे और सेव के बगल में ओके दिया होगा, यू विल प्रेस ओके एंड योर फाइल विल बी और डॉक्यूमेंट विल बी सेव्ड। इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। अब इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करके फिर उसके बाद आप जो विंडो आपका है वेटपैड विंडो उसको क्लोज करोगे। फॉर क्लोजिंग चिल्ड्रन एज आई टोल्ड यू, ये जो आपका टॉप मोस्ट पार्ट होता है इसको हम टाइटल बार कहते हैं, उसके कॉर्नर में आपको एक क्रॉस बटन दिखाई देता है लाइक दिस। यहाँ पे आपका एक बॉक्स होता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड क्रॉस होता है। इस क्रॉस पे जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो बंद हो जाएगा और हम फाइल के बाहर आ जाएंगे। तो इसमें से हम इस पे क्लिक करेंगे और हमारा WordPad का डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। इन दिस वे यू विल एग्जिट फ्रॉम द और यू विल क्लोज दैट file or document. So children, we have already done this while learning the chapter. When we were reading the chapter, that time we have already done. We will do once again in our online class and revise whatever we have done. So thank you for today. Whatever we have done, please go through it. Try to complete your work in the book. We will meet once again in our next video. Till then, thank you and have a nice day ahead.